Good evening, one and all. I took this honor to welcome everyone for this Vesper meeting online. Let's have a word of prayer. Dear Lord, we thank you for this privilege that thou hast given us to gather together and have this fellowship as we worship thee and praise thee. Accept us, accept our prayer, and accept us as we are. We submit the program unto thy hand. Forgive us our sins and shortcomings. In Jesus' name we pray. Amen. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, now my feet on higher ground. Lord, give me all that I shall stand. My faith on heaven's stable land, a higher land than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where clouds arise and fears dismay. Though some may dwell where disappoint, my prayer, my aim is higher ground. Lord, leave me all that I should stand. My faith on heaven's stable land, a higher land than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and get the gleam of glory bright. But still I'll pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lead me all that I shall stand. My faith on heaven's stable land, a higher land than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Let us sing a song that will cheer us by the way. In a little while we're going home. What an high will land in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, in a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. We will do the work that our hands may find to do. In a little while we're going home. And the grace of God will our daily strength renew. In a little while we're going home.
Savior is waiting to enter your home. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to give you a home. God is your answers to him. Time after time, he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to love me. Healing pain, one step, what a Savior, my friend. You'll find his arms open wide. Receive him and hold your darkness to heaven. Breathing in your heart healed above. Time after time, he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Oh, how he wants to come in. जैसा कोलंबस ने 1492 में नई दुनिया की खोज की थी, अटलांटिक के इस तरफ दो व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनका शक्तिशाली प्रभाव होगा ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंटवाद को आकार देने में, लैटिमर और कैनमर। ह्यूग लैटिमर का जन्म 1491 में हुआ था। यहाँ टरकास्टन के छोटे से गांव में, लेस्टर के ठीक उत्तर में, एक वैसा ही क्षेत्र जिसमें जॉन विक्लिफ ने 1 सदी पहले काम किया होगा। उसके पिता एक किसान थे और फिर भी उसकी बिनती व्यवसाय के बावजूद उन्होंने सुनिश्चित किया कि लैटिमर स्कूल में रहे और शिक्षा प्राप्त करे, एक महत्वपूर्ण निर्णय जो उसके जीवन में उसको बहुत आगे तक ले जाएगा। उन्होंने 14 साल की उम्र में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1510 में क्लेयर कॉलेज में यहाँ सदस्य चुना गया। वह उस समय एक उत्साही पोपवादी था। वह 7 साल तक लूथर और मैकेल्टन जैसे पुरुषों के खिलाफ पूरी जोश के साथ प्रचार किया। कैथोलिक शिक्षाओं में उनका विश्वास सर्वोत्तम था और पोप तंत्र के दिव्य मिशन में उनका जोश अडिग था। तो वो क्या था जो पोपवाद के स्तंभ को प्रोटेस्टेंटवाद के स्तंभ में बदल दिया? थॉमस बिल्नी नामक एक आदमी के साथ मुलाकात जो बाद में उससे मिलने जाएगा, यहाँ तक कि उसके साथ बात करने के लिए एक बाल्य बूथ तक भी आया और अंततः उसने उसके विचार बदल दिए। बाद में दोनों एक साथ कैम्ब्रिज में बीमारों और कैदियों से मिलने जाते हैं।
लैटिमर यहाँ विस्टर में एक शाही पादरी और बिशप बन गया, पोप सुधार की वकालत करते हुए, और उन पादरियों की निंदा की जिनके पास बाइबल नहीं थी, या उन पनिशनर्स की जो प्रभु की प्रार्थना भी नहीं सुना सकते। सुधार के लिए उसकी आह्वान ने उसे 1539 में जेल में बंद कर दिया, लेकिन थॉमस क्रॉमवेल के हस्तक्षेप से उसे राज्य से बख्शा गया। वह हेनरी अष्टम की मृत्यु तक जेल में रहा। जब एडवर्ड 6 उसे जेल से रिहा किया, वह फिर कभी बिशप के उच्च पद पर नहीं रहेगा, लेकिन नियमित रूप से प्रचार करना जारी रखा, जहां दर्शकों ने उसके प्रचार का आनंद लिया, जो अपनी हाजिर जवाबी, अपनी बुद्धि और अपनी बाइबल प्रकृति के लिए जाना जाता था। जुलाई 1553 को जब एडवर्ड 6 की मृत्यु हुई तो इंग्लैंड में उथल पुथल मच गई। लेडी जेन ग्रे सिंहासन पर बैठी, लेकिन 9 दिन के लिए। मेरी टूडोर के सिंहासन ग्रहण करने से पहले सुधारकों के प्रति प्राथमिक अनुग्रह के बावजूद इंग्लैंड को कैथोलिक राष्ट्र बनाने के लिए उनके इरादे जल्दी स्पष्ट हो गए। मेरी ने लैटिमर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उस तक ये समाचार पहुंचाया कि उसे बंदी बनाने वाले अपने रास्ते पर थे। उन्होंने उसे भागने का मौका दिया, लेकिन उसने नहीं चुना। जैसे वे लंदन के रास्ते में स्मिथफील्ड से गुजरा, उसने टिप्पणी की, यह जगह मेरे जीवन के लिए लंबे समय से करा रही है। यहाँ लंदन के टावर में कैद उसकी मुलाकात लंदन के बिशप न्यूक्लियस रिडली और कैंटरबरी के आर्च बिशप थॉमस कैनमर से हुई। 1554 मार्च में उन्हें यहाँ ऑक्सफोर्ड में आजमाया गया, जहाँ लैटिमर से पूछा गया क्या मसीह का कुदरती शरीर संसार रूप में था, जिस पर उसने जवाब दिया, हमारे उद्धारकर्ता का शरीर स्वर्ग में है, जहाँ वे स्वर्गारोहण में प्रस्थान किया। उसने आगे समझाया कि प्रभु बोझ में परिवर्तन रोटी में नहीं था, बल्कि विश्वासी के हृदय में होता है। उसे और रिडली को मौत की सजा सुनाई गई और 16 अक्टूबर को उन्हें बेलियोल कॉलेज के बाहर फांसी की जगह पर लाया गया। यहाँ ये चिन्ह जमीन को चिन्हित करता है, ठीक उसी स्थान पर जहाँ उन्हें जलाकर मार दिया गया था। आग की लपटों से पहले वे एक दूसरे से गले मिले और रिडली ने लैटिमर से कहा, भाई उत्साह से रहो, परमेश्वर या तो आग की लपटों के क्रोध को शांत करेगा या हमें इसे सहन करने के लिए मजबूत करेगा। लैटिमर ने तब जवाब दिया, धैर्य से रहो मास्टर रिडली और भूमिका निभाओ। हम इस दिन परमेश्वर की कृपा से इंग्लैंड में एक प्रकाश जलाएंगे, क्योंकि मुझे परमेश्वर पर भरोसा है कि ये कभी नहीं बुझाया जाएगा। इतिहास कहता है कि इसके तुरंत बाद लैटिमर की मृत्यु हो गई, लेकिन रिडली की धीमी और दर्दनाक मौत हुई। उनकी मृत्यु की कीमत सिर्फ 1 पाउंड और 5 शिलिंग थी, लेकिन असल परिणाम यहाँ इंग्लैंड में रोमनवाद को उखाड़ फेंकना था। पूरा देश ऐसे धर्म से स्तब्ध था जिसे खुद को बनाए रखने के लिए इस तरह के क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता। जैसे कि हम उनके जीवन और उनके मृत्यु पर विचार करते हैं, हमारे लिए वास्तविक सवाल है, क्या वो प्रकाश जो उन्होंने अपनी मृत्यु पर जलाया था आज भी हमारे जीवन और हमारे गवाह में जलता है?
तेरी जय पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय। सबों को हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसका अनुग्रह अब तक मेरा जीवन में बना है और आज मैं इस सुंदर मौका के लिए सचमुच में परमेश्वर का लाखों धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ही हमें अब तक भला चंगा रखा है। पूरे 2021 साल यदि हम देखें कि क्या ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है और हर खतरों से हमें बचा कर रखा है और हमें एक नया साल फिर से दिया है ताकि हम उसका महिमा प्रशंसा करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करने पाएँ। हम इस वक्त हम वचन में जाएंगे, उससे पहले हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को हम सौंपते हैं। महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने अब तक हमें भला चंगा जीवित रखा है। तूने हमें आशीषित किया है पिता परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हर बीमार से बचा कर रखा है और हमें आज तक जीवित रखा है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तेरे अगुवाई जो अद्भुत रहा है 2021 साल और हमें फिर से एक नया साल दिया है जहाँ कि हम तेरे लोग हम प्रवेश कर सके और अपना जीवन जो है तेरे महिमा के लिए हम जी सके। आज इस समय हम तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। जैसे मैं तेरे वचन को रखता हूँ पिता परमेश्वर, तो मुझे अगुवाई कर तेरे आत्मा के द्वारा, ताकि हम जो भी वचन रखते हैं तेरी ओर से होने सके। और जितने भी लोग विभिन्न जगह से जुड़े हैं तेरे वचन को सुनते हैं, उन्हें भी तू आशीषित कर। उन सारे लोगों को मन और हृदय को तू खोल दे, तेरे आत्मा से परिपूर्ण कर दे, स्वर्गीय बुद्धि दे उन्हें, ताकि तेरे वचन को वो समझ सके और उसके मुताबिक चलने योग्य हो सके। गुनाहों को क्षमा कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं विशेष विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का शीर्षक जो है हम पाते हैं रोमियो 13 का 11 और 12। आपके पास बाइबल हो तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। यहाँ कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मेरा शीर्षक जो है नींद से जाग उठना। हम मसीही हमारा जीवन को यदि हम देखें,
कई बार हम जो है हम नींद में आ जाते हैं, जबकि वचन कहता है हमें नींद से जागने के लिए, उठने के लिए। और अब जो समय आया है हमारे जीवन में कि हम इस अंतिम समय में हम जी रहे हैं। सारे संसार में यदि हम देखें, चिन्ह जो वचन में दिया गया है यीशु का आगमन का, हम देख रहे हैं कि पूरा होता जा रहा है। इतना ही नहीं, जब हम प्रकृति को देखते हैं वो भी प्रकट करता है कि मसीह यीशु का आगमन निकट है। इसलिए वचन यहाँ कहता है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जिस तरह से हमने देखा 2021 साल जो है बीत गया, हम मसीह का आगमन के ओर हम और निकट आ गए हैं। एक दिन बीत जाता है हमारे जीवन का तो मसीह के आगमन के ओर हम और निकट आते हैं। वचन यही स्पष्ट कहता है हमें, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंचे। क्या ही समर्थी वचन है ये। हम मसीही जीवन को जब हम देखते हैं, यदि हम कुछ भी नहीं करते हैं मसीह यीशु के लिए, न गवाही देते हैं, न उसके लिए कोई कार्य नहीं करते हैं तो हम नींद में हैं। इसलिए कहते हैं समय को देखते हुए हमें नींद से जाग उठना है। यदि हम नींद से जाग उठते हैं निश्चित तौर से हम गवाही देंगे, मसीह यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है उस चीज़ को हम औरों को बताएंगे हम, और उसका आगमन के लिए हम लोगों को हम तैयार करेंगे। इसलिए हमें कहता है नींद से जाग उठने के लिए। पहला थिस्सलुनी 5:5-6 में कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जगते और सावधान रहे। और क्या ही वचन है यहाँ पर, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जगते और सावधान रहे। हम दुनिया को हम देखते हैं, हर तरह के चिन्ह जो कि मसीह यीशु का आगमन को प्रकट करता है। युद्ध और युद्ध, अकाल और अकाल, महामारी और महामारी, परिवार में अशांति, मंडली में अशांति, मंडली में बंटवारा, सारे जो है मसीह यीशु का दूसरा आगमन को प्रकट करता है। और इन सारी चीज़ों को हम अपने आंखों से हम देख सकते हैं इस संसार में हो रहा है। इसलिए कहता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते रहो और सावधान रहो। क्या ही वचन दिया है। मसीह यीशु ने सचमुच हमें कहा है हमें जागते रहना है। हम एक घटना को जरा हम ध्यान देंगे जो कि हम पाते हैं प्रेरित क्रिया 20 में। 20 का नाम से यदि हम पढ़े, यहाँ एक ऐसा घटना को हम पाते हैं जो कि नींद जो है हमारे जीवन में काफ़ी खतरा हो सकता है। खासतौर मसीह जीवन का नींद जो है वो खतरा होता है। या यदि हम पढ़ेंगे प्रेरित क्रिया 20 का नाम से, यहाँ कहता है, और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ और गहरे नींद से झूक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटरी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। हमने देखा यहाँ पर नींद कितना दर्दनाक भयानक हो सकता है। यदि हम मंडली में, यदि अपना मसीह जीवन में हम नींद हालत में हम पाए जाते हैं, निश्चित तौर से हम उस जवान की तरह हम गिर पड़ेंगे और मृत घोषित किए जाएंगे। यूतुखुस ये जवान खिड़की पर बैठा हुआ था, वचन सुनता रहा, लेकिन आगे हम पाते हैं कि इतना गहरा नींद में आया, वो खिड़की से गिर पड़ा और मर गया। क्या कभी हमने अनुभव किया अपना जीवन में, मसीही जीवन में, जब हम मंडली में आते हैं, कोई उपदेश देते हैं तो हम नींद में आ जाते हैं? क्या कभी हमने अनुभव किया है? भाई और बहनों, हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। जब हम परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं, हमें जागते रहना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन को हम सुने और हम जीवित रहे। शैतान का हमेशा प्रयास है कि मसीही लोग वो आनंद जीवन को प्राप्त ना करे, वो मरे हुए पाए जाए। यही शैतान का प्रयास होता है। लेकिन हमने यहाँ देखा यूतुखुस ये जो जवान जो है परमेश्वर का वचन सुनता रहा,
लेकिन ऐसे हालत में उस पर गहरा नींद आ गया और नींद से झूक रहा था वो, और वो नींद के झोंके में 30 से अटारी पर से वो गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। लेकिन आगे हम पाते हैं, परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उसने बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले गए और बहुत शांति पाए। इस जवान को जीवित पाया गया। कई बार हमारे जीवन में हम भी नींद अवस्था में हम पाए जाते हैं, लेकिन मसीह का अनुग्रह हमको फिर से उस नींद से जगाता है हमें। लेकिन हमें होना चाहिए कि दोबारा हम नींद में न आए, बल्कि हम जागते रहे और परमेश्वर का वचन को हम सुनते रहे। इस जवान यूतुकुस वो मर गया था नींद के कारण, लेकिन उसको और एक जीवन मिला और उसने उसको जिलाया और वे उस जवान को जीवित ले आया और बहुत शांति पाई। इसलिए भाई और बहनों, आज अब जितने लोग सुन रहे हैं विभिन्न जगहों में रह करके भी, मैं चाहता हूं कि हम मसीही जीवन में यूतुकुस के तरह हम नींद के झोंके में ना आए, बल्कि हम जागते रहे। क्योंकि हमने जिस तरीके से वचन को पढ़े हैं रोमियो 13:11 में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंचे हैं। नींद से जागने की घड़ी आप पहुंचे। यदि हम नींद में बने रहे तो निश्चित तौर से हम यूतुकुस की तरह हम गहरे नींद में आ सकते हैं और हम अपना जीवन में मृत को हम ला सकते हैं। उसके बाद हमने देखा पहला थिस्सलुनीके 5:6 में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जगते रहे। क्या ही वचन है हमारे लिए। आज मसीही जीवन में हमें जागते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, ताकि हम जो है मसीह यीशु का आगमन के लिए हम तैयार पाए जाए। हम जब देखते हैं मरकुस की पत्री 14:31 से पढ़ते हैं, यहाँ कहता है, फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सिमोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें जागते रहना चाहिए। ये तो कुछ उस नौजवान जो कि वचन सुन रहा था, पौलुस का उपदेश सुन रहा था, लेकिन उसका जीवन में वो नींद आया और उस नींद ने उस वचन सुनने से उसको अलग कर दिया। जब वो अलग हुआ, वो नींद के झोंके पर से वो क्या हो गया, गिर गया और उसको मृत पाया गया। आज यदि हम जागते ना रहे, हम नींद से हम ना जगे, तो हम भी मृत हो जाएंगे। हमारे जीवन में मृत्यु आ जाएगा, हम मसीह यीशु से हम अलग हो जाएंगे। इसलिए मसीह यीशु अपने चेलों से कहा यहाँ पर कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मसीह यीशु आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो पिता के दाहिने में है, हमारे लिए विनती करता है और वो हमें वचन के जरिए कहता है कि जागते रहो। आज हमें जागना चाहिए, हमें जागना चाहिए। जब कभी हम वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें जागना चाहिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम जगे और हम जीवन पाए। शैतान हमेशा प्रयास करता है कि हम अनमित में हम जाए। जैसे वचन कहा गया है, यीशु मसीह कहता है यहाँ पर यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ यीशु ने स्पष्ट कह दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हम
जीवन, जो आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से यूहन्ना 5:39 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 5:39 में लिखा है यहाँ पर, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हम वचन को हम पढ़ें क्योंकि हम निश्चित जानते हैं वचन ही हमें आनंद जीवन की ओर हमें अगुवाई करेगा। और शैतान नहीं चाहता है कि हम वचन पढ़ें, क्योंकि इसलिए हमने अनुभव किया, हमने सुना है, देखा है कि कई बार जब हम बाइबल को हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में नींद आ जाता है। नींद आने पर हम वचन पढ़ने से हम वंचित होते हैं, हम दूर रहते हैं, अलग कर लेते हैं अपने आप को, और हम वचन नहीं पढ़ सकते हैं उस समय नींद के कारण, और हम उन बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, तुम पवित्र शास्त्रों को ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है। और शैतान नहीं चाहता है कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें हम, ताकि हम आनंद जीवन को पाए। शैतान चाहता है कि आनंद विनाश के ओर हमें ले जाए, और वही काम किया शैतान ने यूथियुस का जीवन में। उसको गहरा नींद दिलाया, वचन से उसको अलग कर दिया, जो कि पौलुस उपदेश दे रहा था, और गहरा नींद के झोंके में वो आया, वो गिर पड़ा और मृत्यु पाया गया उसको। और आज भी हमारा और आपका जीवन में यही होता है, जब कभी भी हम वचन पढ़ते हैं तो शैतान जो है वो हमें नींद दिलाने का प्रयास करता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि शैतान पर हम विजय हासिल करें, हम वचन को पढ़ते जाए, हम जगते रहे और प्रार्थना में लगे रहे। हम जिस तरीके से यीशु ने कहा अपने चेलों को, जगते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में तुम ना पड़ो। और ये वचन आज आप और हमारे लिए भी है। चलिए हम प्रयास करें अपने जीवन में, मस्त इस जीवन को हम एक जगा हुआ जीवन हम कहे, हम जागते रहे, हम नींद में ना आए। और यदि हम जागते रहेंगे, निश्चित तौर से हमारा जीवन जो है वो मसीह का दूसरा आगमन के लिए तैयार पाया जाएगा। यूहन्ना 8:32 में कहता है यहाँ पर, यदि हम वचन पढ़ते हैं हम सत्य को हम प्राप्त करेंगे, सत्य ही हमें क्या करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा। और शैतान नहीं चाहता कि हम वचन को पढ़कर हम स्वतंत्र हो पाए। हम यूहन्ना 8:32 का, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि सत्य कौन है? यीशु कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जब हम वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह है मार्ग, सत्य और जीवन। और जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम नींद में रहेंगे, अपने को हम वचन से दूर रखेंगे, शैतान वहाँ हमारे जीवन में उस मृत्यु को ले आता है। क्योंकि हमें वचन से अलग करता है, मसीह से हमें अलग करता है, और मृत्यु को शैतान ले आता है हमारे जीवन। इसलिए हमें समय को पहचानना है और हमें जागते रहना है हम, क्योंकि यीशु कहता है जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हम एक ऐसा घटना को देखने जा रहे हैं इस वक्त हम, जो कि हम पुराना नियम में हम पाते हैं। हम यदि देखें न्यायियों का पुस्तक 16 में, हम सारे लोग इस घटना से वाकिफ़ हैं, हम अच्छी तरह से इस घटना को जानते हैं। लेकिन मैं कुछ शब्दों को हम बताने चाहते हैं जो कि काफ़ी आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। ये जो न्यायियों का पुस्तक 16 जो हम पाते हैं सिमसन के विषय पर। सिमसन एक नवयुवक, शक्तिशाली, परमेश्वर का दास, उसका सेवक था, चुना हुआ, अभिषेक किया हुआ, और उसने बहुत सारा ऐसे युद्ध में विजय हासिल किया, फिलिस्तीनियों को हराया है उसने। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर इतना ताकत, इतना बल था कि सामसन जो है उसने एक जवान सिंह को भी उसने फाड़ डाला। कहता है यहाँ न्यायी 14:5 से यदि हम पढ़े, कहता है तब सिमसन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहाँ उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाए। ये समसन पर इतना शक्ति कहाँ से आए? क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त, उसका चुना हुआ एक अभिषेक व्यक्ति था, जवान था, जो कि परमेश्वर के लिए वो काम करने का योग्य था। वो परमेश्वर लोगों को बहुत सारे ऐसे युद्ध से छुड़ाया, जिताया, यानी कि
दुश्मनों को पराजित किया। सिर्फ इतना नहीं, और हम पाते हैं 15 में यदि हम देखेंगे, सैमसन 15:4 में कहता है, तब सैमसन ने जाकर 300 लोमड़ियों को पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछी एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर पर खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। सैमसन में वो ताकत था, बस का आत्मा उसमें था। लेकिन यदि हम जाएं 16:19 से, हम पढ़े यहाँ पर 16:19 यहाँ कहता है, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के 7 लाठें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सैमसन, पलिश्ती तेरी घात में आया है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसकी पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जा कि पीतल की बेड़ियां से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। सैमसन जो कि एक शक्तिशाली परमेश्वर का दास, एक भक्त सेवक था, बहुत से युद्ध उसने जीता है, फिलिस्ती अपने दुश्मन को हराया था। लेकिन उसने यहाँ पर दलीलिया जो एक स्त्री को उसने अपनाया और अपने आप को उस पर समर्पित किया और उसने उनको सुला दिया। नाम यदि हम पढ़े कहता है, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। देखिए नींद कितना खतरा हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है। सैमसन जैसे एक व्यक्ति को कहता है, तब उसने अपने घुटनों पर सुला रखा, उसको सुला दिया अपने घुटनों पर, गहरा नींद दिला दिया उसको। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके दुश्मन जो आ जाते हैं और कहता है सिर के 7 लाठें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सैमसन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झुकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया था। एक व्यक्ति सैमसन जो कि शक्तिशाली समर्थी था वो, लेकिन जब दलीला के घुटने में वो नींद में सो जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ हम देख सकते हैं अपना मृत्यु वो ले आता है। कहता है और बंदीगृह में चक्की पीसने लगा, उसके सिर के बल मुंड जाने के बाद फिर मरने लगा। देखते हैं हम। और सैमसन अपना जीवन जो है परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक पालन नहीं करता है, अपना जीवन जो है उसको दलीला को सौंपता है और दलीला जो है उसके दुश्मन फिलिस्ती को बुलाता है और उसके बाद हम देखते हैं उसका शक्ति जो है उसका शक्ति जो सिर में था उसको हटाया जाता है, मुंडवा डाला जाता है और उसके बाद उसका दुश्मन आते हैं तो पहले जैसा वो अपने आप में वो ताकत नहीं पाता है। इसलिए आप पर हमारे लिए एक बड़ा संदेश ये है कि हमें जगते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन जो है वो चारों ओर एक शेर के तरह वो घूम रहा है। कभी भी यदि हमें पाता है वो हमें मार डाल सकता है। हमें जगते रहना चाहिए। मसीह यीशु ने इसीलिए हमें कहा, प्रार्थना करो, जगते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना आओ। यदि हम नीति वचन 20 में हम यदि देखेंगे 20:13 में हम पाते हैं, यहाँ पर नीति वचन 20:13 में यहाँ लिखा हुआ है हमारे नींद के विषय पर। नींद के विषय हमें क्या होना चाहिए, कहता है यहाँ पर, नींद से प्रीति ना रख नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। नींद से प्रीति ना रख नहीं तो क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। यदि हम नींद से प्रीति रखते हैं हम काम नहीं कर पाएंगे, हम वचन नहीं पढ़ पाएंगे, आत्मिकता में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इस तरीके से आत्मिकता में हम दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, आज जितने लोग सुन रहे हैं विभिन्न जगहों से, कहता है कि हम जागते रहें, हम जागते रहे। जिस तरीके से यहाँ हमने पढ़ा
रोमियो के 13:11 में हमें समय को पहचानना है। और निश्चित तौर से हम देख सकते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी में चारों ओर जो है यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह हमें दिखाई देता है। लड़ाई हम देख सकते हैं, युद्ध, मंडली में, परिवार में अशांति, खास करके इस समय जो है महासंकट का समय, महामारी का समय, ये जो कोरोना का अलग अलग वेरिएंट जो आ रहा है, निश्चित तौर से हमें बताता है कि हम मसीह यीशु के आगमन के हम बहुत निकट हैं। हम जैसे वचन कहता है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मसीह यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। इसलिए आप और हम चले, हम प्रयास करें कि हम जगते रहे और प्रार्थना में हम लगे रहे, जगते रहे और प्रार्थना में लगे रहे, ताकि हम मसीह यीशु के आगमन में हम तैयार पाए जाएं। प्रकाशित वाक्य 16:15 में ऐसा कहता है, देखो मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगपन ना देखे। कहता है धन्य है वह जो जागता रहता है। मसीही जीवन में आज आप और आपको जागते रहना है। तो मसीह यीशु जब इस दुनिया में थे, अपने चेलों से भी यही कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न आए। और अब हमें कहा जाता है कि धन्य वह है जो जागता रहता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं यीशु मसीह कब आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन का समय हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमेशा हमें जागते रहना चाहिए ताकि हम उसका आगमन के समय हम तैयार हम पाए जाएं। मत्ती 26:41 में कहता है, मत्ती 26:41 में लिखा है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर। मत्ती 26:41 में कहता है इस तरीके से, जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है, और इसलिए आप पर हमें तैयार होना है, वचन पढ़ना है, ताकि हम उस नींद को हम हरा सके, क्योंकि नींद का नतीजा मृत्यु। जिस तरीके से उत्थुक उस जवान जो है नींद के झोंके में वो गिर पड़ा और मृत पाया गया। सिर्फ इतना नहीं, यदि हम देखेंगे वचन में, यूहन्ना 11 में यदि हम जाते हैं, यहाँ पर हम पाते हैं लाजर जो मृत दशा में था, जब मृत था, यीशु कहता है वो क्या है, वो नींद में है। लेकिन हम जानते हैं कि जब यीशु नींद का विषय कहता है तो मृत है वो। यहाँ हम पढ़ना चाहते हैं, कहता है यहाँ पर यूहन्ना 11:10 से, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। हम यहाँ देखते हैं मृत्यु को जो है नींद से तुलना किया जाता है। यदि हम वचन पढ़ते हुए हम नींद में आ जाते हैं तो निश्चित आत्मिक तौर से हम मृत हो जाते हैं। लेकिन यीशु कहता है तुम जागते रहो, और शैतान जो है वो नहीं चाहता है कि आप और हम आनंद जीवन हम प्राप्त करें। हमेशा उसका प्रयास होता है कि हम आनंद विनाश में हम जाएं। इसलिए चलिए आप और हम मसीह यीशु में अपने आप को हम समर्पित करें और इस तरीके से हम जागते रहे, हम तैयार रहे, सावधान रहे, और मसीह यीशु का दूसरा आगमन के लिए हम पाए जाएं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हम उम्मीद करते हैं आज जो वचन हमने रखा, आप लोगों ने सुना है, निश्चित तो हमारे आत्मिक जीवन में हमें नींद से हमें उबारेगा, हमें जगा कर रखेगा,
क्योंकि समय निकट है। यीशु मसीह का आने का आगमन जो है, आने का समय जो है बहुत ही निकट है। हमें तैयार होना चाहिए। ईश्वर आप सबों को आशीषित करे। चलिए हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं सारे आशीष के लिए। क्या सुंदर वचन तूने हमें दिया है कि हम अंतिम समय में हम जागते रहे, प्रार्थना में हम लगे रहे, ताकि हम परीक्षा में ना डाले जाएं। ये भी हम जानते हैं कि मसीह यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। पिता परमेश्वर, तो हमें शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि हम इस अंतिम समय में हम जगे रहने पाए, हम नींद में ना रहे, बल्कि हम समय को पहचान पाए कि हमें जागना है। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इस अंत के समय में हम अपना जीवन को हम एक गवाही बनाएं, ताकि ये सुसमाचार जो कि मसीह यीशु दोबारा आने वाले हैं अपने लोगों को लेने के लिए, इस संदेश को हम बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें, बहुत सारे लोग जो है तैयार पाए जाए। हम दुआ करते हैं जितने लोग आज विभिन्न जगह से जुड़े हैं, सुन रहे हैं, उनको आशीषित करना पिता। हम सारे लोग फिर से तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। हमारे पाप गुनाह को क्षमा कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।